हेलो स्टूडेंट्स। सो कल है साइंस का एग्जाम। जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा सारा मैक्सिमम कंटेंट कवर किया डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में, उसी तरह से आज हम कवर करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके बाद जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट क्विकली। सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, एक एक करके पढ़ना है। लुक, इफ यू विल सी दिस पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने इफ यू हैव दिस सरफेस, लाइट इज कमिंग, हिटिंग इट एंड अगेन गोइंग बैक। जहां से आया एक पर्टिकुलर पोर्शन में हिट किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट इज अगेन गोइंग बैक टू द सेम मीडियम। इफ सो व्हाट वी आर सेइंग, when light falls on a highly polished surface, means you are not going to take the reflection in irregular surface. Like for example, if I will say, if I am having surfaces of this shape, clear, that is I am saying the surface is like this, then light will come, will fall and will go. So this is the reflection part. If I will say there is a surface like this, then we call it as irregular surface. This is the regular surface, which is also called as the polished surface, like mirrors. Clear? So generally we talk about the basic of reflection here. And the light, like if you will see here, what you are looking at it, the light is coming in this portion, the light is coming इंसिडेंट रे। ऑलवेज यू नीड टू कीप एरो मार्क, एरो मार्क भूलना नहीं है, एरो मार्क भूलोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि लाइट आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, लाइट इज कमिंग, दिस इज द point, this is called the point of incidence, and again light is going back. Look, जहां से आ रहा है वहीं से मीडियम में जा रहा है। and if you will draw a normal here which is passing the point of incidence, this is called angle of incidence I, this is called angle of reflection R, and for reflection I must be equal to R. This is the basic law. So यहाँ से हम लोगों का क्या आएगा, you are going to have laws of reflection, very important 2 mark question for a board examination. What is the laws of reflection? First law says the incident ray, the reflected ray and the normal, the incident ray, the reflected ray and the normal are the point of incidence, all lie in the same plane, सारे एक plane पर है। This is called the basic concept of your laws of reflection of light. Okay, second is said angle of incidence equal to angle of reflection, जो मैंने यहाँ पर बोला, angle of incidence equals to angle of reflection. This is the diagram, understand, this is the polished surface, incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence I, angle of reflection R on a plane. This is the basic logic of your what, laws of reflection of light. Clear? Okay, try to understand this part. Those who want, they can also take the screenshot of it. Okay, the next comes how the image formed in a plane mirror. Okay, so in exam you will get question like, so just explain the formation of image in a plane mirror, और उसके साथ पूछेगा कि show it diagrammatically, and पूछेगा उसके साथ what is the meaning of inversion of image or the laterally inverted images. Clear? So if you will go for this concept, what you are going to get, first you will see that in case of your light ray, अगर तुम किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा जो इमेज दिखता है, द इमेज विच यू सी व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए, सुबह हमेशा खड़े होते हो नहीं, बहुत जन तो अपनी जिंदगी का आधा टाइम बिता देते हैं मिरर के सामने खड़े होते होते। ठीक है, सो व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू विल फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। ओके, द नेचर ऑफ द इमेज इज आल्सो फाउंड टू बी योर व्हाट, द सेम, दैट ये उल्टा सीधा नहीं हो जाता। ठीक है, दैट मींस इट्स नॉट योर हेड इज डाउन एंड योर this feet is up, it's not like that. That's why the image formed is erect, सीधा, the image is of same size on यहाँ पर diagram. If you are not able to understand this diagram, let me explain the diagram in different form. For example, there is one surface, ठीक है, this is the object or the source we can say, light ray यहाँ से आया, got reflected. Clear? अगर उसको तुम पीछे बढ़ाओगे से, इसको ज्वाइन करो एंड इनफिल्ड, यू विल फाइंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, माने लाइट रे इज समहाउ diverging from a point, so the nature of the image is always found to be virtual, is it or not?
and you will find this is, let us say, image distance v. So what it is saying, the object distance must be equal to image distance. पहला केस यहाँ पर लिखा होगा, देखो, the image is at the same distance from the mirror as that of the object. ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस में है मिरर से उतने ही डिस्टेंस में इमेज फॉर्म होगा. Another form is the image size is same as the object. If I am, let us say, 6 feet, my image will also look like 6 feet in case of plane mirror. इमेज का साइज चेंज होने वाला है नहीं प्लेन मिरर में, ठीक है. दूसरा आया द इमेज इज वर्चुअल. क्यों वर्चुअल? क्यों तुम यहाँ से देखोगे, लुकिंग फ्रॉम हियर, तुम्हारे लिए लाइट रे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है. जब लाइट रे डाइवर्ज करता है तो वी से द नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल. समझ में आया कि ना, रियल होता तो कन्वर्ज करता, डाइवर्ज कर रहा है मतलब वर्चुअल, कन्वर्ज कर रहा है मतलब रियल, ठीक है. तो दिस इज अनदर पार्ट इज, दिस इज लैटरली इन्वर्टेड. माने अगर तुम मेरे के सामने खड़े होगे, अपना राइट हैंड उठाओगे, तुम्हें लगेगा कि ये, अगर तुम्हारा राइट हैंड है, ये होगा तुम्हारे इमेज का राइट हैंड. आप ऐसे घूम जाएंगे, दिस इज योर इमेज, दिस इज मी, दिस इज माय इमेज. सो व्हेन आई एम lifting my right hand, look what my image is lifting, it's right hand actually practically. but जब तुम यहाँ से देखोगे उसको, तुमको क्या दिखेगा, it is lifting its left hand. that is what the logic, that means यहाँ से उठाए तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर वो हाथ उठा रहा है, तुम्हें लेफ्ट में है. that's why we are saying it the lateral inversion. very important part to understand. you have to draw, if you are not comfortable with this kind of diagrams, draw this diagram for your exam and with these properties. very important 3 mark question or 2 mark question you will get here. Okay, now let's go to the next slide. what do you mean by spherical mirror? and spherical mirror, basically we talk about a curved surface. let us say तुम एक sphere लिए, consider करो कि there is a sphere and sphere के एक portion को सिल्वर बना दो, ठीक है. you just make one portion silver. let us say there is a sphere and you make this portion silver. इसको काट दो यहाँ से, तो क्या मिला, you got a structure like this. this is silver. तो ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब लाइट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वो हिट होगा और इट विल कम बैक. क्लियर? इसी तरह लॉजिक. नाउ कम टू दिस पार्ट. अगर सोचो कि तुम बोलोगे नहीं सर मैं इसको बना दूंगा सिल्वर, तो यू मेक इट सिल्वर. नाउ यू कट इट, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ shape like this. so look, you got 2 kind of mirror. this portion or this kind of shape, where this one is the reflecting one, this is the silvered one. this is called concave shaped mirror. अब इसको उल्टा कर दो. this one is for example the reflecting one and this is the silvered one. this is called the convex shaped mirror. this is the basic 2 mirrors we talk about. so अब ये mirror हमें मिले कहाँ से, when we talk about a sphere. तो यहाँ पर क्या है, स्फीयर का एक सेंटर होगा, स्फीयर का एक रेडियस होगा. सो वी आर गेटिंग डिफरेंट शेप लाइक कनकेव. लो कनकेव मिला, कनकेव मिला, कनकेव, ये मिल गया तुम्हें कॉन्वेक्स. तो लिखा है कनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मोर एंड मोर. देन नेक्स्ट पार्ट इस, ये जो मिरर है इसका एक सेंटर है, इट आल्सो हैज अ रेडियस. So this center is called center of curvature. Means if you will see this, if I am going to draw it, a concave mirror, this is the line. if I will draw one line, this is going to cut it with pole. okay, you already know these things. so ये जो concave mirror है, ये पार्ट है, this portion. तो इसका कुछ दूर में, at what distance, at distance of r, there is center of this sphere. इस स्फीयर का सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब क्या करोगे तुम लोग, सोचो कि यू आर गोइंग टू पुट वन दिस, अलाउ ए लाइट टू कम. अब यहां पे वो हिट किया करके वो आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया. रेडियस को वो जिस पॉइंट में कट करता है उसे हम बोलते हैं फोकस. कनकेव मिरर के लिए कन्वेक्शन अलग होगा, वी विल डू द डायग्राम लेटर. जिस पॉइंट में the incident ray after reflection in the reflecting surface of concave mirror
जिस पॉइंट में वो इस रेडियस को कट करता है, रेडियस इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस केस। अगर तुम पूरा स्फीयर नहीं ले रहे हो, वी कॉल इट एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एक-एक करके, ठीक है। दिस इज द बेसिक। सो स्फेरिकल मिरर्स में सब कुछ मिलता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर्स, ठीक सो आई एम नॉट गो गेटिंग मोर इनटू दिस। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, you will find it clear. So this is the logic of now the next one is, as I said you, center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis, principal focus और focal length। इन पांचों के बारे में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये वाला रिलेशनशिप जो मैं बोल रहा था, ये वाला r इक्वल टू 2f, माने जैसे मैंने बोला कि वी आर हैविंग ए स्फेरिकल मिरर या फिर कनकेव मिरर हम लोग लिए, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक ए कनकेव मिरर, ठीक है, एंड लाइक दिस, इफ आई विल ड्रॉ द diagram, this is the mirror and this one is the center of curvature and this is the focus। तो ये पूरा था रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब ये हुआ तुम्हारा फोकल लेंथ। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द व्हिच वन प्रिंसिपल फोकस, यू विल ऑलवेज फाइंड कि ये फोकल लेंथ होगा 5। तो द रिलेशनशिप इज व्हाट, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, very important formula for your examination, clear? So focal length is always equals to half of the radius of curvature, clear? Okay, now come to the next, refraction of light। So when we talk about refraction of light, what we say, refraction is the phenomenon of change in the path। देखो मैं तुम्हें थोड़ा डायग्राम करके बता देता हूँ, so you will get it clear। सोचो कि we have one इंटरफेस, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्यों? दिस इज ए लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम फ्रॉम ईच अदर। लेट अस से दिस इज वाटर, लेट अस से दिस इज एयर। अब दोनों में डेंसर कौन है? ये है डेंसर। डेंसर माने द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर इन केस ऑफ वाटर, लेस इन केस ऑफ एयर। अब सेम रिफ्लेक्शन की तरह एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, उसको नाम दे दिए सोचो एन एन प्राइम। सोचो कि ये उस इंटरफेस को पास कर रहा है किस पॉइंट में? ओ पॉइंट में। अब क्या करोगे? नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन, नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन, सॉरी नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन इंसिडेंट रे। ड्रॉ करो इंसिडेंट रे। अब वो हिट किया कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। अब वो जब देखो, थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक पार्टिकल जो कि मैंने एक स्टोन को थ्रो किया, अब वो एयर में से ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। सडनली वो क्या करेगा? एक मीडियम में हिट करेगा जो कि एयर से डेंसर है, तो उसका स्पीड क्या होगा? स्लो हो जाएगा। इट विल स्टार्ट टू स्लो डाउन। जब तुम स्लो होते हो तो तुम ऐसे नहीं चलते हो, तुम थोड़ा बेंड होना शुरू करते हो। सो द सेम थिंग विद हैपनिंग विद F1 रे स्टार्स। ओके, यू कैन गो टू दैट एक्सपेरिमेंट आल्सो। हम देखें कि यहां से ये थोड़ा सा बेंड किया, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होता तो इसका एंगल कितना होता है? इतना होता है एंगल। तो इसे हम ले लिए, सोचो टोटल को ले लिए i। सो ये तो r हो गया, तो यहीं पे ये कितना आएगा? दिस विल बिकम i माइनस r। दिस इज कॉल्ड डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन। याद रखो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डेल्टा इक्वल टू व्हाट? उस टाइम हम उसको मॉड ऑफ i माइनस r लिखते हैं। ओके, डेल्टा इक्वल टू i माइनस r। दिस इज द केस व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू, दिस इज द रेयरर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। डेंसर और रेयरर मीडियम रिलेटिव होते हैं। अगर मैं एयर की जगह अभी वाटर ले लूं यहाँ पर और यहाँ पर ग्लास ले लूं, तो ग्लास हो जाएगा डेंसर और वाटर हो जाएगा रेयरर। सो डिपेंड करता है, रिलेटिवली दे आर डेंसर और रेयरर। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। लाइक दैट यू विल गेट मेनी कंडीशंस। ओके, वी विल गो वन बाय वन। क्लियर? रिफ्रैक्शन इज द phenomenon of change in the path of light as it travels from
transparent medium to another. It can also be defined as the phenomenon of change in speed of light from one medium to another medium. And another one is next. You will see the diagram. Just look at the rarer, denser, rarer. Now allow the light to pass. Now look at this part. It is bending. How it is bending? Look, when you draw the normal, this incident ray is bending towards normal. Now the second ray is going out to the rare medium. It is going bending away from normal. तो हमेशा याद रखो that if you are going to talk about the case, हमेशा याद रखो. मैं तुम्हें एक जनरल डायग्राम करके दिखा देता हूँ. If I will draw the general diagram, this is let us say normal. This is the incident ray. This is the refracted ray. यहाँ पर हो गया ये I, ये हो गया R. So when light travels from rarer to denser, the condition is that angle of incidence always greater than angle of refraction. Here this is one case. Now consider करो कि light is traveling from denser to rarer. Denser to rarer. अब क्या होगा? It will bend away. तो ये हो गया R, ये हो गया I. So what is the? This is the rarer. This is the denser. ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? rarer to denser. ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? denser to rarer. अब इसका क्या आएगा? I is less than R. हमेशा याद रखो. Very important condition these are. अब next one, if I will draw, let us say there is a normal, and you found that the incident ray is hitting the interface perpendicularly. माने I हो गया 0. तो it is observed that light का bending होता नहीं है. तुम सीधा जा रहे हो. अब medium change हुआ लेकिन तुम सीधा ही जा रहे हो. You are not oblique. These two are also sometimes called as the oblique incidence. Oblique incidence. This is called the normal incidence. Okay, remember the terms. अब क्या होगा? फिर light ray will travel the same, no bending. So R equal to 0. I equal to R equal to 0 in case of normal incidence. Rarer to denser, I greater than R. Denser to rarer, I less than R. Always this is for the oblique one. Clear? समझ में आ रहा है कि ना? This part you have to remember very carefully. Look at this part. I R R I. Laws of refraction then. Very important 2 mark question. The incident ray, the normal to the refracting surface at the point of incidence, all lie in the same plane. For a given pair of media light of a given wavelength, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is found to be a constant. That constant is going to give you a new name called as refractive index. It is called mu equal to sin I by sin R. Sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant. This constant is called refractive index. और एक चीज हमेशा याद रखो, it depends upon कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो. For example, this is medium 1, this is medium 2. अगर इसको थोड़ा रेड में ड्रॉ कर देते हैं, that this is medium 3. अगर तुम 1 से 2 में गए तो तुम जहाँ एंटर किए उसको लिखते हैं हम नीचे, जहाँ से आए उसको लिखते हैं हम ऊपर. ऐसे याद रखना है. 1 to 2 तुम आए. सोचो कि अब लाइट जा रहा है 2 से 3, तो क्या लिखेंगे? म्यू 3 कहाँ से आया? 2 से. So be careful while writing these things. Okay, you have to be very careful about it. Okay. So you will read it as refractive index of medium 2 with respect to medium 1. माने you are saying that when light was in medium 1 came to medium 2, how its speed changed. That relationship of change of speed when light travels from one medium to another medium is called refractive index. Okay, it has a formula also. I think it is there. You will get it. So this is called Snell's law. Very important 2 mark question for board examination. Clear? Next comes refractive index, which I was saying. Light is traveling from one medium to another, and like I said, mu to 1. It is written in this form. Clear? This is the formula. Refractive index. So remember the formula. Refractive index is the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. If the medium 1 is vacuum, medium 1 is, let us say, vacuum, medium 2 is any medium, then this kind of refractive index is called absolute refractive index. उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम?
mu equal to c by v. c is the speed of light in vacuum, v is the speed of light in any medium. अगर सोचो कि वैक्यूम बिल्कुल है नहीं, if nothing is vacuum, both are random medium, medium 1 medium 2, तो लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. अगर 1 से 2 में आ रहे हो तो लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 equal to v1, velocity or speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. if is v1 equal to c, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट. अगर v1 v2 c की मतलब बोथ मीडियम्स में से कोई भी एक वैक्यूम है नहीं, वैक्यूम होगा तो यू हैव टू राइट एब्सोल्यूट. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर? दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. गॉट इट? दिस इज द बेसिक केस. ओके, नाउ कम डाउन टू द अदर पार्ट. ओके, वी विल गो इट क्विकली. गॉट इट? this one is absolute, this is the relative. Now comes remember parallel class law. Okay, just look at this concept. If you will see, they are traveling from one medium to another. Okay, this is normal shift. This is not required for you people now. Okay, this is not required. So just remember this part. Mu of optically rarer medium is lower than the denser medium. जहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगा that is called denser medium as compared to other. Mu of denser medium with respect to rarer medium is more than 1 and that of rarer medium the denser medium is less than 1. That means you are going to talk about the vacuum and air having, actually air is 1.0003, vacuum is 1. Okay, in refraction the velocity and wavelength of the light change. Very important short question for board examination. What changes in refraction? Reflection में three things are there. One is your frequency, velocity and wavelength. Okay, frequency, velocity and wavelength. ये हमेशा सेम रहेगा, रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी. रिफ्लेक्शन में तीनों सेम रहेंगे because you are not changing the medium. ठीक है. रिफ्रैक्शन में who and who are changing? Velocity and wavelength, and frequency remains the same. Remember, रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. रिफ्लेक्शन में तीनों सेम रहेंगे because there is no change in medium. Very important short question for board examination. Clear? Okay, now come back to the next part. The frequency and phase doesn't change. Different medium. सर याद रखना, बस एयर का याद रखो 1.03, इसको नियरली हम 1 ले लेते हैं. तुम लोगों का वाटर का 1.33 आ गया, फिर ग्लास का आ जाता है एक्चुअली 1.5, बेंजीन का भी 1.5 है, नॉट रिक्वायर्ड. देन दिस वन नॉट रिक्वायर्ड. डायमीटर 2.42. इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर दिस शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, डायमीटर 2.42. रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, जैसे हम मिरर में पढ़े वैसे ही स्फेरिकल लेंस का भी एक आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्फेरिकल लेंस. देखो ये तुम्हारा हो गया डबल कन्वेक्स लेंस, ये तुम्हारा हो गया डबल कनकेव, ये तुम्हारा हो गया प्लानो कन्वेक्स, ये तुम्हारा क्या प्लानो कनकेव, ये तुम्हारा हो गया कन्वेक्सो कनकेव, ये हो गया तुम्हारा कनकेव कन्वेक्स. दीस आर आल्सो कॉल्ड एज मेनिस्कस लेंसेस. दे लुक लाइक द अपर एंड लोअर मेनिस्कस ऑफ वाटर. क्लियर? तो आप पढ़ेंगे कि ये उन्होंने बनाया कैसे गया. नाउ लुक एट दिस पार्ट. उनको हम कैसे प्रिपेयर किए. इफ यू विल सी इट, डबल कन्वेक्स लेंस माने यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू स्फीयर्स. दिस इज वन स्फीयर, दिस इज वन स्फीयर, ये वाला एक स्फीयर है. तो फिर क्या होगा, दे आर हैविंग ए पॉइंट हियर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस. सो यहाँ पर इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका एक रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा. सो इन केस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस और समटाइम कॉल्ड बाई कन्वेक्स आल्सो, यू हैव टू डील विद टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. और फिर एक बात है, अगर तुम इसमें कन्वेक्स लेंस ले रहे हो तो लाइट रे विल कम, विल रिफ्रैक्ट थ्रू इट. जहां पर वो कट किया उसे हम बोलेंगे फोकस. जैसे कनकेव मिरर में जाता था वो, कनकेव में क्या होता था, कनकेव मिरर में यू यूज्ड टू डू लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे गोइंग एंड हिटिंग. पहला रे जिसे जहां हिट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, दैट इज कॉल्ड फोकस. पहला रे जहां हिट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस. But it also has a focus, but we don't calculate this, we call it the principal focus. Same for this double concave also. What you are getting, double concave, this is nothing but one sphere
nothing but one sphere. And what about this plano convex? Plano convex माने one plane and one convex surface. Plano concave one plane लिए one convex. Getting this one? And this one is the convexo concave convex and concave convex and convex. These two. And this can also for 10 this is not so much required, but these two are very important for 10, specifically this. Clear? Okay, now come down to the next. Fast principal focus. देखो मैंने जो बोला, this is the convex lens. फोकस में तुम ऑब्जेक्ट को रखे, छोड़ दिए, नाउ इट इज डाइवर्जिंग. लुक एट दिस पार्ट. कनकेव में प्रिंसिपल फोकस में रखे, देखो कहाँ आएगा वो, इट इज गोइंग टू फॉर्म देयर. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके. नेक्स्ट पार्ट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. सेकंड पर जहां पर जाके वो हिट करेगा. लुक एट दिस पार्ट. कन्वेक्स लेंस लिए, देन यू अलाउड सम पैरेलल बीम्स, ओके, टू कन्वर्ज. अब वो यहाँ है, बेंड हुए. थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देयर विल बी नो बेंडिंग लाइक थ्रू your this, like I said you, through interface like the optical center there is no bending. Then again so this is f2. Look at this part, they are converging. Concave में देखो they will diverge होगी ना, they are going to form the focus. So you have to primary and this is the secondary, or first principal focus or second principal focus. Clear? Now comes the convex lens or biconvex lens. Okay, this is called thin convex lens. That is the center of curvature, your optical center. This is called optical center. I will say you one by one. Like you had there, you will have this also. Concave lens. This is the concave lens. Again optical center. Now, is the center point of a lens. Clear? Okay. Let us say you are having, as I said you, these are nothing but the convergence of two spheres. So two spheres माने कितना आएगा? दो center. इस तुम लोग का है कि एग्जाम भी कल है और YouTube में तुम लोग मेरा वीडियो भी देखोगे, तो अब तुम सोचोगे कि सर का तो वीडियो देख ले, उस चक्कर में थोड़ा सा घर में लोगों को ना बता के थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि क्या नया ट्रेलर आया है, तो दिमाग दोनों तरफ गया तो एग्जाम कल का क्या होगा, गया. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फोकसिंग ऑन दिस. मेरा वीडियो देख रहे हो उसके बाद पढ़ना है, ठीक है. तो सेंटर दो है, तो दो स्फीयर के तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए. अब नेक्स्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. उसके बाद रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा. उसके बाद आएगा तुम्हारा दिस प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? देन नाउ लाइट रे इज कमिंग कन्वर्ज्ड एंड यू आर फॉर्मिंग एट फोकस, प्राइमरी फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस. हियर आल्सो द सेम. लुक एट दिस पार्ट, फोकस, फिर आया फोकल लेंथ. सेम फार्मूला है इसका भी आएगा, फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? इसका देखो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर सेम. रेज टू बी कंसीडर फॉर रे डायग्राम. अब देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे करना है. ये कन्वेक्स लेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फर्स्ट प्राइमरी या फिर प्राइमरी फोकस हो गया, सेकेंडरी फोकस हो गया, लाइट रे. लुक एट दिस पार्ट, दिस, यस, दिस इज द फोकस यू कैलकुलेट. ऑलवेज रिमेंबर कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा राइट साइड रहता है, कनकेव का हमेशा रहेगा लेफ्ट साइड. Got it? This is what we are going to talk about. Now, अब फिर से लेंगे, फिर से लो. Look what is happening. If a light ray is now passing through the focus, then after hitting through the lens, you will find the light ray traveling parallel to the principal axis. Very important question for board exams. It will ask you to draw the diagram. When light ray passes through the principal focus or the first focus, then you will how the light ray will travel after the refraction. It always parallel to the principal axis. Look at this one in this also. Again the same. It is passing through actually focus. If there will be no divergence, अगर diverge वो नहीं होता, लेंस के थ्रू पास नहीं करता वो, तो क्या होता फिर फोकस के अंदर पास करता नहीं कर रहा है वो, तो अभी हम क्या लेंगे, this one getting this one. Look, अभी देखो ऑप्टिकल सेंटर में है. नाउ यू लेट अस से अलाउ द लाइट टू पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ऐसे पास करवाओ या ऐसे पास करवाओ, without deviation they will travel. Remember these things. If you pass through focus after refraction, the refracted ray is parallel to principal axis. If you pass through optical center, there will be no deviation at all. They will pass undeflected.
Look this one. Clear? Image formation of convex lenses. I am not going to draw again and again. Convex lens लिए सोचो कि ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, मतलब रे कैसे आएंगे? You will get parallel beams. हाँ क्या? देखो. Where the image formed? Image formed at focus. Object at infinity, image formed at focus. ये diagrams you have to remember. Position at F2, real and inverted. Nature क्या होगा? Real and inverted. As I already said you, whenever there is convergence, the image will be real. अब तुम यहाँ देख रहे हो. You are looking the image here. अब तुम इमेज को यहाँ देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि लाइट रे ऐसे आए मर्ज किए एक दूसरे के साथ, तो योर आई इज लुकिंग द कन्वर्जेंस, तो यू विल द इमेज विल बी ऑलवेज रियल. इन्वर्टेड माने उल्टा. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज इन्वर्टेड. मैग्नीफाइड माने अगर ऑब्जेक्ट अगर इतना है और इमेज इतना फॉर्म हुआ, दिस इज द मैग्नीफाइड. अगर ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड डिमिनिश्ड और स्मॉल. क्लियर? दिस इज वेरी स्मॉल. यहाँ पर क्या हुआ देखो, इमेज बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, उसे हम कभी कभी बोलते हैं डिमिनिश्ड. ठीक है, वी कॉल इट एज डिमिनिश्ड. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट. An object is placed beyond C1, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर के beyond C1. Look at this part. Beyond 2F, you will find images between F and 2F. Okay, remember them. What is the nature? Inverted. Is it? उल्टा हुआ. बड़ा है कि छोटा है? छोटा है. It is small in size. Is it? And you are looking from here, so light ray is converging, so the nature of image will be real. Got it? Next. If the object is placed at C, very important question this one. Every year it comes. At C. अब देखो at C में हुआ. At C में हुआ, तो यहाँ फिर से आएगा. ट्रैवल किए, इमेज फॉर्म हुए at C. ये ऑब्जेक्ट अगर C में रहता है तो इमेज भी C में हुआ. नेचर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा, इमेज ऐसा, तो इन्वर्टेड हुए. अब ऑब्जेक्ट का साइज जो था, इमेज का साइज भी वो है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? इट विल बी ऑफ सेम साइज. इन्वर्टेड, रियल और सेम साइज. तुम्हें वो क्वेश्चन में आएगा, इट विल गिव यू द साइन कन्वेंशन, फिर पूछेगा देख के v का वैल्यू, u का वैल्यू, पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक है? लुक, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज आर मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F. देखो, ए बी हुआ ऑब्जेक्ट, इन के बीच में 2F1 और F1 के बीच में तुमको मिला कि इमेज बियॉन्ड 2F फॉर्म हो रहा है. बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है? बड़ा हो रहा है. उल्टा में सीधा हो रहा है? उल्टा हो रहा है. तो तुम यहाँ से देखोगे तो कन्वर्ज हुआ कि डाइवर्ज हुआ? कन्वर्ज हुआ, तो यू विल गेट रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज. यू कैन नॉट राइट हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है? नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, देखो तो एट फोकस, फोकस में रखे हुआ. देखो इमेज कैसे आएगा? लुक एट दिस पार्ट. कहाँ फॉर्म हुआ? You will find the image to be formed at a very long distance. अब इन्फिनिट दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कभी वो मिलेंगे नहीं. You will get parallel rays for a long distance. So nature of image देखो क्या लिखा होगा, highly linear. अब इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब वो दोनों कहीं पर जाके तो मिलेंगे, कहीं पर बहुत दूर. जैसे दिल्ली अभी दूर नहीं बोले थे, आगे ना. अब लोग बोलते हैं दिल्ली अभी दूर नहीं. वैसे 10th का बोर्ड अभी दूर नहीं, तुम लोग भी बोल रहे थे कल साइंस एग्जाम. तो सारा चीज कभी ना कभी मिलते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पैरेलल रेस, एक्चुअल पैरेलल रेस. क्लियर? ओके. द नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है. अब ये गया, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ज, तो हम उसको पीछे स्ट्रेच करवाएंगे और हमें मिला कि एक इमेज फॉर्म हो रहा है. अब देखो उस इमेज का फॉर्म. अब तुम यहाँ से देख रहे हो, तुम्हारे लिए यहाँ से ऐसे लाइट रेस डाइवर्ज हो रहे हैं. डाइवर्ज हो रहे हैं मतलब क्या होगा? मतलब इट विल बी व्हाट्स, इज इट सीधा है कि उल्टा है? ए भी ऐसा था, अब ये भी ऐसा है. देखो साइज बढ़ गया, लेकिन दोनों का हेड एक तरफ है. तो तुम छोटे बच्चे थे, मजे कर रहे थे, अब बड़े हो गए फिर भी मजे कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान तो है नहीं. ठीक है? सो ए बी है और ए डैश बी डैश है, तो दोनों का साइज छोटा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन दोनों का हेड ऊपर की तरफ है.
और इसको तुम देखने के लिए दिस इज नॉट एक्चुअली फॉर्मिंग ऑन रियल साइड, इसलिए बोला जाता है कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड, उसका फोटो क्लिक नहीं कर सकते तुम, इट कैन नॉट बी पुट ऑन स्क्रीन। रियलिटी कुछ है नहीं, जैसे तुम लोग वर्चुअल रियलिटी में जीते हो, वर्चुअल बोल अभी वर्चुअल में पढ़ा रहा हूँ, अब तुमको थोड़ी ना मैं गाली कर पाऊंगा फ्रंट टू फ्रंट, थोड़ी ना तुम मुझे डायरेक्टली आके कुछ बोल पाओगे, सो वर्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं लाइक दैट। तो यहाँ से तुम्हें लगा कि लाइट रेज आर डाइवर्जिंग 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 डाइवर्जिंग, so this is that's the nature is virtual erect और larger than the object, कभी-कभी लिखा जाता है कि behind the object also क्वेश्चन में, ठीक है ओके। अब तुम देखोगे कि कन्वेक्स लेंस में बहुत टाइप के इमेज फॉर्म होंगे, बट कनकेव लेंस में हमेशा एक ही टाइप का इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म क्या है देखो, यहाँ पर सब नेचर है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो, देखो ऑलरेडी जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है उन लोगों को मैंने अच्छे से लिखवाया है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। Image formation by a concave lens. Look at this part. For any position of object, इसका मीनिंग है कहाँ पर भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इमेज एक ही फॉर्म होगा। मतलब तुम लोगों को कितना भी समझा ले, एट द एंड तो तुम अपनी ही करोगे। वही है ना आज के जनरेशन का थॉट, क्या हुआ डाइवर्ट हुआ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वो डाइवर्ट नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट डाइवर्ट। क्या हुआ, फोकस में पास किया, इमेज का साइज क्या हो रहा है, बड़ा है कि छोटा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल है क्योंकि क्यों वर्चुअल है, तुम यहां से देखोगे उसको, तुम्हारे लिए तो यहां से ऐसे रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, सो यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर एंड सीधा है इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दीस आर द बेसिक। अब आ गया साइन कन्वेंशन, तुम लोगों को साइन कन्वेंशन चाहिए होगा कहां पर, न्यूमेरिकल के लिए। अगर साइन कन्वेंशन में हमेशा याद रखो, मैं तुम लोगों को डायग्राम करके बता देता हूं, अगर तुम लोग if you are going to take a convex lens and this is the principal axis, this is the optical axis, if the object is on the left hand side you will take it as negative, if image is on the right hand side you will take it as positive, left or right। कभी कभी बोला जाता है कि if light ray is traveling towards right it is negative, then away from the lens also called as positive, ठीक है, वो अलग बात होता है, तुम लोगों के लिए नहीं चाहिए अभी। रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस इज नेगेटिव एंड राइट इज पॉजिटिव, above the principal axis irrespective of side will be taken to be positive, below the principal axis will be taken to be negative। Is it clear, understood this part? This is the sign convention, left negative, right positive, up positive, down negative। तो ये sign convention you have to let us say क्वेश्चन में दिया है, an object is at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब तुमको कन्वेक्स लेंस दे दिया, अब तुमको दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट भी दे दिया, अब तुम्हें मालूम है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, तो तुम एग्जाम में लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू 20 दिया है, कौन से साइड में दिया है, लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए क्या लेंगे माइनस 20। तो इसको देख के तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा याद रखिएगा साइन कन्वेंशन डिफाइंस द मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। क्वेश्चन में पूछा जाएगा इमेज का नेचर बोलो, क्वेश्चन निकालेंगे, हम पढ़ेंगे अभी लेंस फार्मूला, ठीक है। व्हाट इट दिस इज द साइन कन्वेंशन, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, यहां पर भी वही लिखा है, लेफ्ट टू द लेंस, इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव टू द लेफ्ट टू राइट, द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लेफ्ट वाला होगा पॉजिटिव, राइट वाला होगा नेगेटिव, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव y पॉजिटिव y। While solving numericals, sign convention you have to put, look at this part, फिर you will see क्या देख रहे हो, देखो डायरेक्शन इंसिडेंट लेफ्ट से राइट आ रहा है तो वो होगा नेगेटिव, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव हो गया टुवर्ड दिस, इंसिडेंट ड्रॉप क्या होगा नेगेटिव, दिस अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, क्लियर, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस इज द फॉर द कनकेव बॉन्ड, क्लियर। ओके, लेंस फार्मूला इसको बस याद रखना है, अगर हम एक लेंस लेंगे और डिफरेंट केसेस में लेके उसको सॉल्व करेंगे, सो बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, f को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर,
जो ऑलरेडी मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, उनके बीच का रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द लेंस फॉर्मूला, रिमेंबर। तो ये था लेंस फॉर्मूला, ये है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हम लोग क्या पढ़े थे, r इक्वल्स टू f इक्वल्स टू r/2। सो इस f की जगह पुट कर दो r/2, तो कितना तुम्हें मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू r/2, ये हो जाएगा 2/r। दिस इज आल्सो वन फार्मूला। अगर फोकल लेंथ दिया नहीं होगा, गिविंग द रेडियस ऑफ कर्व, देयर आल्सो यू कैन राइट दिस सेम थिंग इक्वल टू 2/r। गॉट इट? मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। दिस इज योर लेंस फार्मूला, दिस इज योर मिरर फार्मूला। गॉट इट? दिस इज बेसिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इतने दूर में ऑब्जेक्ट है, उसको लेंगे u, साइन कन्वेंशन डालेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। फिर जहां पर इमेज फॉर्म हुआ, हो सकता है अगर वर्चुअल होगा तो इमेज कभी कभी लेफ्ट में भी फॉर्म होगा, तो इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन राइट हैंड साइड, कैन बी फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो उसका साइन कन्वेंशन कुछ फिक्स्ड है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन लगभग नेगेटिव होता है। फिर कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस हमेशा यहां रहेगा, सेकंड फोकस यू टॉक अबाउट। सो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतना याद रखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, f ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, v कैन बी एनीथिंग। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन माने अगर मेरा ऑब्जेक्ट में हूं 6 फीट का, और सोचो कि मैं एक लेंस के सामने खड़ा हुआ, मेरा इमेज अभी दिख रहा है 3 फीट का, तो तुम पूछोगे कि सर आपका मैग्निफिकेशन कितना है। मैग्नीफाई कौन किया, लेंस किया, कितना किया, छोटा कर दिया मुझे, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना, मुझे आधा कर दिया। तो हम कंपेयर करेंगे कि इमेज का साइज जितना आता है उसके साथ ऑब्जेक्ट का साइज कितना था। अगर ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा होता है, इमेज का साइज छोटा होता है, तो उस हिसाब से हमें मैग्निफिकेशन मिलता है। सो मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द फार्मूला इज दिस। मैग्निफिकेशन नथिंग बट द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज। अब इसको लिखने से पहले मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। Look at this part. This magnification is very important formula to understand. Why? Because look, for example, there was this m equal to h dash by h. कुछ लोग इसको I by O भी लिखते हैं, image distance to object distance. Clear? Okay. So अगर h dash माने image greater than h, एक रेशियो में अगर न्यूमरेटर इज लार्जर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, माने मैग्नीफाइड इमेज हुआ, तो तुम्हें मिलेगा हमेशा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सोचो कि h डैश लेस देन h, अगर किसी रेशियो में न्यूमरेटर हुआ छोटा, डिनोमिनेटर हुआ बड़ा, तो हमेशा उसका वैल्यू आएगा डेसिमल जीरो में, तो उसका वैल्यू आ गया मॉड ऑफ m लेस देन 1। अगर किसी केस में जैसे हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम हो गए, तो तुम्हें मिल जाएंगे m इक्वल टू 1। इसको याद रखना है। On the basis of that, you are going to get the formula. Clear? So you are getting here two formulae. Magnification on the basis of size of object image and image distance to object distance. The formula is plus v by u. Clear? और एक फॉर्मूला आएंगे, देखो जैसे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v and f, इन टर्म्स ऑफ u and f, जस्ट इसको याद रखो। ठीक है, पर ऑलवेज ट्राई टू यूज द लेंस फार्मूला व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू। और एक चीज यहाँ पर तुम्हें याद रखना है कि अगर कहीं पर भी तुम्हें दिया है कि मैग्निफिकेशन, if magnification is found to be, that is magnification is 3 दिया है। मैग्निफिकेशन 3 माने if it is a convex lens, तो image can be real और virtual। तो तुम क्या लिखोगे, for real, उसको गिवन डाटा लोगे m इक्वल टू -3, वर्चुअल लेके फिर जब सॉल्व करोगे उस वहां पर लोगे m इक्वल टू +3। अगर बस रियल दिया है, तो अगर 3 भी दिया है गिवन में, तो उनको -3 लेना पड़ेगा एज पर साइन कन्वेंशन। वर्चुअल दिया है तो नो नीड टू चेंज एनी साइन। Okay, that you have to be careful while doing the numerical. Sign convention गलत मत करना। Optics is a mark fetching part. You can score well just by doing proper numericals. उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो this is the completion of your optics part. Next video I will upload about the electricity. So till then, study, do it, be calm, no need to get panic, give your best. Thank you.